अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस लेक्चर में हम बोलेंगे हमने पढ़ा था रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था वहाँ हमने व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। लेकिन आज हम उन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे बाय वन। सो टुडे विल बी डीलिंग विद द स्टेप 1 ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इज़ नर्सिंग असेसमेंट एंड रिमेनिंग स्टेप्स हम अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। So let us discuss about the nursing assessment. So nursing assessment is the first step of nursing process. And assessment means collecting, verifying and organizing data about the client's health status. ये already मैंने previous class में भी discuss किया है ये वाला slide. So it involves collecting data from variety of sources and assessment एक continuous process है जिसको हम carry करते हैं throughout the nursing process. And it may also be used during the diagnosis phase to validate a diagnosis. Let us discuss about the purpose of nursing assessment. The main purpose is to gather information regarding client's health status. So जब हम information collect करते हैं regarding the health status of a patient, वो one of the purpose बन जाता है nursing assessment का. Another purpose is to organize the collected information. It helps us to enhance investigation of nursing processes. Nursing assessment is important to frame nursing diagnosis, help us to identify health problems of the patients or clients. Also it helps us to identify client strengths. For example, coping mechanism, tolerance to pain, behavior towards the treatment regime. It also helps us to identify need for health teaching. Is there any need for health teaching to the patient or not? And how much is the knowledge deficit? To discuss this nursing assessment step in detail, let us first discuss about the prerequisites. So for conducting a nursing assessment, what are the various requirements or prerequisites which one should have so that he or she can conduct this assessment phase properly and in a productive way? So beliefs are actually, these include beliefs, knowledge and skill. And belief is nursing belief regarding client responsibility and health and illness and role of nursing in healthcare. Belief means कि नर्स को क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका बिलीफ है पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को फीवर है, व्हाट नर्स बिलीव्स that what she can do. Here a nurse believes that it is her responsibility to manage a patient, to reduce his temperature and to maintain his normal body temperature. Or in other way we can take an example of pain. If a patient is having pain, what is the belief of nurse in that case? जब पेशेंट को पेन होती है तो नर्स को क्या बिलीफ होता है अपनी जगह कि पेशेंट जो है इसको पेन नहीं रहनी चाहिए या फिर इतनी कम हम करने चाहिए इसकी पेन सो दैट ये टॉलरेट कर सके और पेशेंट का कंफर्ट एनहांस होना चाहिए. एंड इन दैट वे शी ऑल्सो हैज़ a concept regarding what role she can play. For example, patient with fever. Nurse's belief is that we have to maintain the normal body temperature and we have to make the patient comfortable. And in that way, what is her role is that she has to go for cold sponging, she has to go for assessment of body temperature, she has to go for other measures so that the body temperature will come to the normal and patient will be more comfortable. Then this was about the belief. And if a nurse does not have any belief, for example, you have a patient, you have an attendant, and your patient is having a fever. So attendant does not have the belief like I have to decrease his body temperature. So इसीलिए attendant as such कोई role play नहीं कर सकता. उसको क्योंकि उसको ये concept नहीं है that it is my role, I have to go for cold sponging, I have to make patient more comfortable. He only goes for cold sponging when nurse tells him to go for. So this is what we call as belief.
And the second prerequisite for nursing assessment is knowledge. Knowledge is important because patient having fever, अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट है उसको फीवर, सबसे पहले जो नर्स है उसको फीवर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस, व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज, where to what is the normal body temperature, what is hyperpyrexia, what is moderate kind of temperature, and she should also have the knowledge regarding what is the intervention, कि अगर पेशेंट हाइपरपायरेक्सिया में है तो तब क्या करना चाहिए, अगर माइल्ड फीवर में है तब क्या करना चाहिए. देन ओनली शी कैन प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट केयर टू द पेशेंट. Another prerequisite for nursing assessment is skill. Skill is needed for properly performing the assessment. And for this, a nurse needs psychomotor skill and interpersonal skill. So skill, एक नर्स में एक स्किल होना चाहिए कि वो कैसे असेसमेंट करेगी. उसके पास बिलीव भी है, नॉलेज भी है, बट हाउ हाउ एक्चुअली शी विल डू दिस. एंड उसके लिए ए नर्स नीड्स टू टाइप्स ऑफ स्किल, साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल. Psychomotor skills are actually technical skills which are required in many phases. The most common skills are those which are needed for physical assessment. For example, a nurse observes a patient. She knows that patient is feeling little hot and warm. So in that way, she will use her psychomotor skill. She will use a thermometer to check the temperature. She will use the dorsum of her hand to check the temperature. She will check the other vital signs as well. So that kind of skill is known as psychomotor skill. And also she will go for the assessment such as inspection, palpation, auscultation. And what is the interpersonal skill? Interpersonal skills are important in all phases of nursing process, but most importantly, a nurse needs those in assessment phase. And in this interpersonal skill, what she does, she maintains a therapeutic relationship with the patient. She asks the patient regarding how do you feel, can I check your body temperature, because it is important I have to know the temperature. So because she can explain that you have a hyperpyrexia, so you need cold sponging, and patient responds. In that way she uses her interpersonal skills, and she can in between communicate how are you feeling, are you feeling comfortable or you are not comfortable with the sponging. So both psychomotor and interpersonal skills are needed for a nurse for doing nursing assessment. Then finally, after using these skills, after doing the assessment, what is the outcome of this assessment? And the outcome of assessment is data collection. चाहे हम डाटा किसी भी वे में कलेक्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, साइकोमोटर स्किल्स यूज़ करेंगे, interpersonal skill use करेंगे, ultimately what we are doing, we are just collecting the data regarding the patient. So let's now discuss in detail about data collection. Data collection is the process of gathering information about a client health status. जब आप एक पेशेंट को पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने दिनों से आप बीमार हैं, आपको क्या फील हो रहा है, इसकी अटेंडेंस से पूछते हैं, उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, दैट मीन्स यू आर कलेक्टिंग डाटा. And it must be both systematic and continuous to prevent the omission of significant data and reflect a client's changing health status. जब भी हम एसेस करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हैव टू कलेक्ट दैट इन सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस वे. सिस्टमैटिक मीन्स फॉलोइंग ए सीक्वेंस. जैसे हम करंट हिस्ट्री पूछेंगे, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स पूछेंगे, फिर फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, तो सिस्टमिक वे में हमें जाना है. एंड कंटिन्यूस फेज में जाना है. जैसे आज हमने एसेस किया, अगले दिन थोड़ा सा और पूछेंगे पेशेंट को. So in that way, we are not going to miss any significant data. Data collected from a patient includes both subjective data and objective data. अब हमने असेसमेंट कर रहे हैं, हम असेसमेंट में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं,
और ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ये हमने वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स आपको पेशेंट बता रहा है कि मुझे फीवर है, मुझे हॉट फील हो रहा है, मुझे रेस्टलेसनेस फील हो रही है। तो जब पेशेंट ये सब बातें आपको बताता है या फिर पेशेंट का अटेंडेंट बताता है तो वो हो गया सब्जेक्टिव डाटा। फिर आप जाके पेशेंट का टेम्परेचर खुद से चेक करते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा, जो आपने खुद से कलेक्ट किया कि कितनी रीडिंग आई, कितना टेम्परेचर है पेशेंट को और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव डाटा। What is the difference between now subjective data and objective data? Subjective data includes the information which the patient or the attendant provides about patient's health status. जो आपको पेशेंट अपने बारे में बोलता है या फिर जो उसका अटेंडेंट उसके बारे में बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट विल से आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग टायर्ड, या फिर उसका अटेंडेंट बोलेगा इसको पेन हो रही है, बहुत थका हुआ लग रहा है। तो ये सब हो गया सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा आर डिटेक्टेबल बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्टिव डाटा वो वाला डाटा है जो ड्यूरिंग असेसमेंट आप खुद ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेक कर रहे हैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर रीडिंग विल बी द ऑब्जेक्टिव डाटा। आप पेशेंट के वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, सो दैट विल बी आल्सो द ऑब्जेक्टिव डाटा। You are checking the cyanosis in a patient, that is again a objective data. अब जो हमने पेशेंट का हम नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हैं और असेसमेंट करते करते हमने डाटा कलेक्ट किया बाय बोथ द वेज, दैट इज सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ डाटा, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दीज इंक्लूड क्लाइंट और पेशेंट हिमसेल्फ, significant others, health personnel, medical records, other records and reports, and literature. So these are the various sources of data collection. तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ डाटा है वो है या तो क्लाइंट या तो पेशेंट हिमसेल्फ। एंड क्लाइंट और द पेशेंट इज द चीफ सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, and the client can provide data which no one else can provide. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पेशेंट है तो अटेंडेंट उसका बोल रहा है कि हमें इसको पेन है, लेकिन पेशेंट आपको पूरा बताएगा कि पेन कब से है, कितनी इंटेंस है, कहाँ पे है, रेडिएट हो रही है या नहीं हो रही है, एग्रेवेट हो रही है या नहीं हो रही। सो पेन के रिगार्डिंग अटेंडेंट आपको इतना बोल सकता है इसको पेन है। बाकी पेन का जो बाकी डाटा है वो सारा सबसे अच्छे से पेशेंट बता सकता है। सो इसीलिए जो पेशेंट होता है या फिर जो क्लाइंट होता है, दोज आर कंसिडर्ड एज चीफ सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सेकेंड सोर्स ऑफ डाटा इज सिग्निफिकेंट अदर्स। what are the significant others? Significant others are supporting person who knows the client well and often provide the data. For example, अगर कोई रोड पे गिर गया, अचानक से चक्कर आ गया और किसी ने उसको उठा के लाया, तो जो जिसने उठा के लाया वो अननोन पर्सन है, वो आपको इतना बोल सकता है कि हमने रोड पे गिर गया था हमने लाया, बाकी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वो सिग्निफिकेंट अदर में नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट में अदर में वो आएगा जिसको पेशेंट के बारे में पूरा पता होगा, मैक्सिमम पता होगा। इसमें आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स, जो कि आपको पेशेंट के बारे में, जो उनके पेशेंट के साथ रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जिनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में बहुत चीज़ें पता होती हैं। So those will be considered as significant others and they can be the source of data collection. Third source is health personnel. These include nurses, social workers, physiotherapists, doctors, and these may provide significant information regarding the patient. For example, a nurse who is taking care of a patient for 2-3 days, she can provide significant data regarding his health condition. A doctor who is actually taking care of the patient, they can also provide you with the information. If a patient is receiving the physiotherapy, as physiotherapist can provide. So the health persons can also be the source of data collection.
source for data collection is medical records. So medical records are often a source of a client's past and present health and illness patterns. This record can provide nurses with the information about a client's coping behaviors, health practices, previous illnesses and allergies. सो मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं जैसे पेशेंट की फ़ाइल, ट्रीटमेंट चार्ट, प्रीवियस मेडिकल फ़ाइल, वो सब उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के हेल्थ के बारे में मिल सकती है एंड दैट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग patient and can be used as a source of data collection. Other records and reports are the another source of data. These includes these include reports and records which can provide information pertinent to the patient's health, such as lab reports, test reports, biopsy reports, etc. So जो भी पेशेंट के पास एक तो हो गई पेशेंट की फ़ाइल जिसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं. अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं फॉर एग्जांपल पेशेंट की बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट, कल्चर रिपोर्ट्स, पेशेंट ने कोई टेस्ट किया है, अल्ट्रासाउंड किया है, डॉपलर किया, कुछ भी किया तो उसका भी डाटा हम यूज़ कर सकते हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशन. सो दोज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन. नेक्स्ट सोर्स इज द लिटरेचर. The review of nursing and related literature such as journals, reference texts, they can provide the information regarding the current trends in the health or also regarding how you can take care of the patient in a better way like evidence based practice. अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम डाटा किन किन सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, कौन से टाइप का डाटा है लाइक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, what is the difference between the two, what is the assessment, what is the main purpose of assessment, and then finally हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए. Now let us discuss regarding the method of data collection. Now there are various methods by which you can collect the data from these many sources जो हमने अभी डिस्कस किए. These include observation, interviewing and examining the patient or examination you can say. Observation is the first method of data collection. Here the nurse observes mainly through sight. She uses her sense of sight and all the senses are engaged during careful observation. अगर फॉर एग्जांपल एक नर्स ने पेशेंट को ऑब्जर्व किया, उसने देखा पेशेंट के बॉडी पे कुछ लंप है, फिर वो अपना सेंस ऑफ टच यानी अपना हैंड यूज़ करके एसेस करेगी लंप कितना बड़ा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है. सो पहले शी यूजेस हर सेंस ऑफ साइट and then accordingly she can use her other senses as well for observation. Nursing observation must be organized so that nothing significant is missed. For example, she should have a checklist कि मुझे क्या क्या ऑब्जर्व करना है इस पेशेंट में सो दैट कि कोई भी चीज़ मिस ना हो. मोस्ट नर्सेज डेवलप एन इंडिविजुअल सीक्वेंस फॉर ऑब्जर्विंग इवेंट्स. जैसे हम पहली बार पेशेंट को देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ स्किप कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसके लिए हम चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन विद टाइम व्हेन यू गेट यूज टू दीज थिंग्स आपको पेशेंट को देख के ही समझ आता है कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है. सो इन दैट वे नर्सेज देन डेवलप एन इंडिविजुअल सीक्वेंस फॉर ऑब्जर्विंग इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ए नर्स वॉक्स इन टू द पेशेंट्स रूम. एक पेशेंट एडमिट है और एक नर्स पेशेंट के रूम में आ रही है. व्हाट शी ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग थिंग्स. Here, first of all, she will observe the clinical sign of client distress. For example, patient pallor या flashing तो नहीं है, breathing labored तो नहीं है. How is the behavior of the patient? Patient को pain तो नहीं है या emotional distress तो नहीं है. Then second thing what she will observe after entering the room is that threats to the client safety. फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्या साइड रेल्स लगाए हैं, अगर नहीं लगाए हैं देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फॉल, और वो ये एसेस करेगी दैट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फॉल इन द पेशेंट और वो इमिडिएटली साइड रेल्स रखेगी पेशेंट को.
देन शी विल एसेस फॉर प्रेजेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। जो पेशेंट को कनेक्टेड इक्विपमेंट्स हैं वो सब इक्विपमेंट्स फंक्शनल है, काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल इंट्रावेनस इक्विपमेंट होगा, ऑक्सीजन लगा होगा, सक्शन अगर है तो वो सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करेंगी। एंड देन द इमीडिएट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द पीपल इन इट, कि पेशेंट के एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ बहुत गर्मी तो नहीं है, ठंड तो नहीं है, ज़्यादा ह्यूमिड तो नहीं है, या फिर लाइटिंग बहुत ब्राइट या डिम लाइटिंग तो नहीं है, और इंक्लूडिंग कि पेशेंट के रूम के आसपास कितने लोग हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट नीड्स रेस्ट और ही नीड्स पेशेंट नीड्स रेस्ट, तो वो बहुत सारे अटेंडेंट वहाँ होंगे, उनको बाहर निकाल सकती है। या फिर अगर पेशेंट को केयर के लिए कोई चाहिए, शी कैन कीप वन अटेंडेंट, सो शी विल एसेस द इमीडिएट एनवायरनमेंट। सो एक नर्स ने पेशेंट के रूम में एंटर होते ही बहुत सारी चीज़ें एसेस की, like clinical signs, threats, presence and functioning of the equipments and immediate environment. Then the second method of assessment or collection of the data is interviewing. Interviewing means you are asking something from the patient or the relative. So interviewing is a planned communication. यहाँ आपको पता है कि मुझे कुछ पेशेंट से पूछना है, क्या क्या पूछना है वो भी आपको पहले से पता होता है। एंड यहाँ जो आप कन्वर्सेशन करते हैं विद द पेशेंट, दैट इज़ फॉर ए पर्पस, कि मैं क्या कौन सी चीज़ें पूछूंगी, कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, क्या मुझे पूछना चाहिए। सो दैट्स वाई वी से इंटरव्यूइंग इज़ ए प्लान्ड कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन एंड विच अगेन हैज़ ए पर्पस। एंड इंटरव्यूइंग इज़ द प्राइमरी टूल फॉर डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्योंकि कुछ भी आपको पूछना है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, तो पेशेंट आपका नाम, अपना नाम बताएगा। व्हाट इज़ योर एज, आप कहाँ रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कितनी देर से बीमार हैं, कब एडमिट हो गए, ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में पूछेंगे, और यही चीज़ें आप यूज़ करेंगे फॉर डाटा कलेक्शन। सो इट इज़ अ प्राइमरी टूल फॉर डाटा कलेक्शन। देन इंटरव्यूइंग इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, टू इवेल्युएट द चेंज। जब आप पेशेंट को पूछेंगे क्या बात है, आपको बोलेगा मुझे फीवर है, मुझे दम हो रहा है, डिस्निया है, सो यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन उसके बाद आपने ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड की, उसने आप पेशेंट का केयर किया, फिर अगले दिन पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो पेशेंट बोलेगा नाउ आई एम फीलिंग ओके, लिटिल कंफर्टेबल। सो इस वे में यू आर इवेलुएटिंग द चेंजेस ऑल्सो। एंड इंटरव्यूइंग, फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को कुछ पूछते हैं, उसको उसके बारे में पता नहीं है, सो इन दैट वे देयर इज़ अ पर्पज दैट you want to know the knowledge deficit in the patient, so accordingly you can teach him or her or provide the health education. It will help you for example पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, वो आपसे बार बार पूछता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। सो इन दैट वे वंस यू आर असेसिंग दैट डाटा यू कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बट फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देनी है। And you can, it is important to provide counseling and therapy to the patient. The third kind of or method of data collection is physical examination. This is the important step in data collection. So here nurses actually perform physical assessment. अभी तक उसने ऑब्जर्व किया, पेशेंट से पूछा, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रही है असेसमेंट ऑन द पेशेंट टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव डाटा। फॉर एग्जांपल वो पेशेंट से कुछ पूछ रही है, पेशेंट बोल रहा है मुझे पेन है, पेशेंट से पूछ रही है आपको क्या प्रॉब्लम है, बोलता है पेन है। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग शी कैन आस्क, इंटरव्यू कर रही है। सो बोथ द काइंड ऑफ डाटा इज सब्जेक्टिव डाटा। लेकिन यहाँ वो पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन पे पालपेट कर रही है, देख रही है टेंडरनेस तो नहीं है, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस देख रही है, कोई लंप तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन एसेस कर रही है, स्किन कलर, टेक्सचर, बाकी सब चीज़ें। सो यहाँ वो परफॉर्म कर रही है असेसमेंट, और यहाँ वो एक्चुअली कलेक्ट करती है ऑब्जेक्टिव डाटा। एंड here the objective data, once she collects this is the important thing to do, and this will help her to complete assessment phase of nursing process. Then skill needs for physical assessment include knowledge, practice and time.
फिजिकल असेसमेंट के लिए शी नीड्स नॉलेज, शी नीड्स प्रैक्टिस एंड शी नीड्स द टाइम। क्यों एक सेकंड में फिजिकल असेसमेंट नहीं हो सकता। फिजिकल असेसमेंट के लिए शी हैज़ टू शी नीड्स हाफ एन आवर, more than half an hour. Sometimes she needs 1 hour with the patient to go for the physical assessment. The student nurses often begin to develop assessment skill by describing general appearance of the patient. जैसे स्टूडेंट्स को पहले ये असेसमेंट नहीं आता है, तो वो कैसे ये सीखते हैं? जैसे उनको टीचर बोलता है अब बताओ इस पेशेंट के बारे में कुछ, वो पेशेंट को ऑब्जर्व करके बताएगी पेशेंट की जनरल अपीयरेंस के बारे में। शी विल असेस द स्किन, शी विल एक्सेस द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द पेशेंट, मोबिलिटी, पेशेंट चल पाता है नहीं चल पाता है, अगेन बाय monitoring of vital signs. And to conduct a physical examination, nurses uses the technique of inspection, auscultation, palpation and percussion. ये मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। दीज इंस्पेक्शन जब हम हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे उस टाइम में इन डिटेल में ये सब चीज़ें आपको बताऊँगी। सो दिस वाज all about the physical examination. So this was all about the nursing assessment. So हमने पढ़ा nursing assessment, its purpose, importance. So its aim is to collect the data. Then हमने इसमें पढ़ा data collection procedure, how to, what are the various sources of data, what are the two different types of data, and what are the various methods of data collection. सो उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया, हाउ वी कैन यूज़ दैट डाटा टू फ्रेम द नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकेंड स्टेप हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज topic, and any feedback if you want to give, you can give in the comment section, and if you like the video, do share and subscribe. Thank you very much.